Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today in the yesterday's class we have already done the length chapter addition and subtraction, and in the today's class we will do the word problems related to the length. Word, if you are going to any place or if you are seeing in your environment this type of length problems, and then how do you solve these problems? Let's see. There is a first problem here. In the first problem there is given here that Neetu bought 3 meter 75 centimeter of cloth for shirt. Neetu bought 3 meter 75 centimeter of cloth for shirt. She has bought shirt and the length of shirt is 3 meter 75 centimeter and 2 meter 20 centimeter of cloth for trouser, and she has bought also trouser also. So its the length of trouser is 2 meter 20 centimeter. So what is the total length of the cloth she bought? Total length. We have to find here the total length of cloth she has bought. Let's see. There is, what will we do here? Total. It means we have to do here the total, means we have to do here the sum. So let's see there. There is length of cloth for shirt is this, and length of cloth for trouser is equals to this, and total length of cloth. तो जितना कपड़ा उसने खरीदा उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, वो टोटल लेंथ का कपड़ा कितना खरीदा उसने. तो लेट्स सी देयर. वी हैव टू ऐड हियर 5, 7 plus 2 9 and 3 plus 2 5. This is the meter. 5 meter 95 centimeter. Now we will do here the part B. In the part D, let's see there. Amit traveled 15 kilometer 550 meter by train. अमित ने ट्रेन से कितना ट्रेवल किया? इतना. 12 किलोमीटर 400 बाय बस, और बस से इतना किया. एंड दिस किलोमीटर एंड मीटर बाय स्कूटर, और स्कूटर से उन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल की. जैसे आप अपने घर से कहीं मार्केट में जाते हो, फिर मार्केट से किसी और शॉप पर जाते हो, तो और फिर वापस से घर पर आते हो, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रैवल की ये आपको निकालना होता है. तो टोटल ट्रैवल के लिए क्या नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे सभी डिस्टेंसेस को. सेम हियर, इसमें भी हमें वही करना है. सभी डिस्टेंसेस को हम क्या करेंगे? ऐड. देखिए कैसे. राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज दिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज दिस, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर, distance traveled by scooter is this, and total distance traveled we have to find here. So let's total distance is, there is 0 and this is meter here, and there is 5 plus 5 10, 1 is carrying there, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, this is 2 here, and 1 is carrying in this place. 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, this is the kilometer here, and 1 plus 1 2. It will be done here. ये आपको यहाँ तक कंप्लीट. यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होता है? 0. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स वहाँ पे 0 होगा, and then we will add all the terms. Is this clear students? And this is the total distance traveled by them, by Amit. Is this clear students? Now we will go to the next question. Let's see. There is the third part, C. In the C, Mrs. Renu has ribbon. Mrs. Renu के पास रिबन की कितनी लेंथ है टोटल? 16 मीटर 75 सेंटीमीटर का क्लॉथ है उनके पास. रिबन है उनके पास. She cuts it into 2 pieces. देखिए सपोज करिए दिस इज अ रिबन हियर. इतना लेंथ है, टोटल लेंथ इतनी है, 16 मीटर 75 सेंटीमीटर लेंथ का रिबन है. कह रहे कि इसके 2 पीसेस करने हैं. हमने इसका 2 पीसेस किया लाइक दिस, 2 पीसेस. लेकिन कह रहे कि एक पीस की लेंथ हम मेजर करेंगे. यहाँ से हमने मेजर किया यहाँ तक हम सपोज करिए 8 मीटर आ गया, और हमने इसके 2 पीसेस कर दिए. हमने इसको डिवाइड कर दिया, दिस कट कर दिया. अब कट करने के बाद हमारे पास 2 पीसेस आ जाते हैं. 2 पीसेस में से आपको एक पीस की लेंथ दी हुई है और दूसरे की आपको निकालनी है. तो जब बड़ा ये दिया हुआ है टोटल, इसमें से ये भी दिया हुआ है, बट ये आपको निकालना है. इट मीन्स कुछ बड़ा दिया हुआ है और उसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी है तो दूसरा निकल जाएगा. इट मीन्स द रिमेनिंग पार्ट आपको बताना है. रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट आपको बताना है. टोटल दिया हुआ है
एक पार्ट दिया हुआ है बट बचा हुआ कितना है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो अदर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे इसके लिए, सबट्रैक्ट। जब हमें रिमेनिंग निकालना है, लेफ्ट जो बचा हुआ है उसका निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट विल वी डू हियर, find the length of the other piece. So let's see, total length of the ribbon is 16 meter 75 centimeter and length of one piece की length कितनी दी हुई है, 8 meter 90 centimeters and we have to find the length of the other piece. So length of the other piece is 5 9 8 17. There is a 17 here, one carrying from this place, this is 5 here and now 17 minus 9 is 8. Now 5 minus 8 फिर से नहीं होता है तो हम 1 कैरी करेंगे फिर से, दिस इज 15 here and this is the 0 here, 1 कैरी कर लिया, 15 minus 8 is 7 and this is the meter and this is the centimeter. It will be done here. Okay students, I hope you have understood all these problems. Now we will go to the next problem. Let's see, there is the D part. There is D part here. In the D part, what will be asking here, the heights of Ram and Shyam are. राम और श्याम की हाइट दी हुई है। सपोज करिए आपके ब्रदर और सिस्टर, आपकी और आपके भैया की लेंथ हाइट दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टिवली हु इज टॉलर, आप बताइए कि आपकी हाइट ये है और आपके भैया की हाइट ये है, तो बताइए कौन बड़ा हुआ। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है और आपके भैया की हाइट है वो 1 मीटर 28 सेंटीमीटर है। बताइए मुझे किसकी हाइट ज्यादा है, आप ही की हाइट ज्यादा होगी। दिस इज 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ज्यादा है 75 सेंटीमीटर। 1 मीटर तो दोनों में इक्वल है बट 75 ये ज्यादा है सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर कम होता है। इट मीन्स हाइट किसकी ज्यादा हुई, फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाला कौन था, राम। राम की हाइट ज्यादा हुई श्याम से। इज दिस क्लियर। लेकिन कितनी हाइट ज्यादा है, तो लेफ्ट हाइट निकालनी है, कितनी ज्यादा है ये आपको निकालना है। बाय हाउ मच मोर, हाउ मच मोर, मोर कितनी ज्यादा होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट का यूज करेंगे। तो सबट्रैक्ट बोथ द नंबर्स एंड देन वी विल गेट द हु इज टॉलर एंड बाय हाउ मच। लेट्स सी, देयर इज height of Ram is 1 meter 75 centimeter, height of Shyam is 1 meter 28 centimeter and height of Ram is more. Ram की height ज्यादा है, it means so Ram is taller. By how much? By this amount. We have to do here this number. Okay, let's see what will be the number here. There is carrying here 15 and there is 6. There is 15 minus 8 is 7, 6 minus 2 is 4 and there is 1 minus 1 is 0. So 0 meter and 47 centimeter. So अगर 0 मीटर है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें डायरेक्टली हमें क्या लिखना है, 47 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो कितना ज्यादा है, सिर्फ 47 सेंटीमीटर हाइट उनकी कितनी है, ज्यादा है। इज दिस क्लियर? Now we will go to the next part, that is the E part. Let's see, an ant climbed 9 meter 50 centimeter on a wall. एक वॉल पर चढ़ती है आंट, तो उसे डिस्टेंस उसने टोटल कितनी ट्रेवल की, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। ऐसे वॉल पर चढ़ती है धीरे 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 धीरे, तो उसने टोटल हाइट जो ट्रेवल की वो कितनी हाइट होती है, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। देन इट केम डाउन, और फिर वो वापस से नीचे आ जाती है। तो नीचे आती है तो उसने टोटल ट्रेवल की डिस्टेंस 4 मीटर 75 सेंटीमीटर अलोंग द सेम वॉल। वॉल सेम ही है, उसी वॉल के ऊपर चढ़ती है और उसी वॉल के ऊपर वापस चली जाती है। तो जब जाती है, चढ़ती है वॉल के ऊपर, तो उस वक्त तो 9 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और व्हेन शी केम डाउन, जब नीचे आती हैं तो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। हाउ फार इज द आंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताइए उसने सिर्फ ट्रेवल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, पहले आंट यहाँ गई, कुछ डिस्टेंस टोटल उसने इतना यहाँ से गई, यहाँ तक वो गई, टोटल वॉल के ऊपर चढ़ी, तो यहाँ तक उसकी 9 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसने सिर्फ यहाँ आकर के रुक गई। वो कितना डिस्टेंस, ये जो ट्रेवल की डिस्टेंस कितनी थी, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट यही था, यहाँ से चढ़ी थी, यहाँ तक आकर रुक गई है। अब बताइए यहाँ से और जहाँ रुक गई है वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। इतना टोटल वो चढ़ी है
तो क्लिम्ब किया है उसने, तो 950 सेंटीमीटर क्लिम्ब किया है। बट जब केम डाउन हुई तो वहाँ यहाँ 4 मीटर 75 सेंटीमीटर पर स्टॉप हो गई। अब हमें बताना है कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल बच गई है। तो जब लेफ्ट डिस्टेंस या रिमेनिंग डिस्टेंस हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, subtract. So we will do it in the we will do here also the subtract here. Let's see, this is distance climbed by ant on a wall. एक wall पर क्लिम्ब करती है, then the distance कितनी हो जाती है 9 मीटर 50 सेंटीमीटर. But distance came down by the ant, जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जब आंट नीचे आती है तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर. Then the distance of ant from starting point, distance traveled by. Here is written here, distance traveled by ant from starting point to last point, end point, लास्ट पॉइंट जहां स्टॉप होती है। जहां वो स्टॉप होती हैं वहां से और स्टार्टिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी द नेगेटिव 0. देयर इज द 10 हियर एंड 10 minus 5 is 5. नाउ देयर इज द 4 and we will get the 14 after taking the carrying here. So it will be the 14 minus 7 is 7 and this is the centimeter here and 8 minus 4 is 4. This is the meter. तो बताइए टोटल डिस्टेंस अब जो बच गई है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर. तो ये जो डिस्टेंस बची है ये उसने कितनी ट्रेवल करनी रह गई है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर. सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी रह गई है. इतने ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है और इतने ही डिस्टेंस उसकी वापस बच गई है. लेट्स सी. Okay students, here is worksheet 4 is completed here and in the next class we will do the value based questions and write down these questions in the fair notebook. The notebook is very neat and clean handwriting. Okay students, have a nice day. Bye students. Thank you.